I just want to share something from one incident what happened yesterday in my family. और कल मेरे परिवार में एक जो घटना हुई उससे मैं कुछ बांटना चाहता हूँ। Yesterday, as a family, we plan to go to nearby beach to spend little time with the family, children. और कल एक परिवार हमने सोचा हम सब बीच पे जाएंगे, थोड़ा समय बिताएंगे बच्चों के साथ। And as we reached, by the time almost very late, and it's going to be a little sun was about to set. और जब तक हम पहुंचने ही वाले थे तब तक बहुत देर हो गई थी और सूर्यास्त होने ही वाला था। And children were happy to go there and just take some photographs and selfies. और बच्चे बहुत खुश थे उस पर उधर जाकर फोटो लेने के लिए। And we as a parent, there was no place to nearby sitting because everything wet. We thought we will go by bike riding for some little while, let them enjoy some time. और हम माता पिता ने सोचा वहां बैठने के लिए कुछ जगह नहीं थी, सब गीला था, तो थोड़ी देर हम आगे ऐसे ही बाइक पर जाएंगे और बच्चों को वहीं खेलने देंगे। And also we gave them signal we are going for bike riding. After coming also we just told them that we'll wait little away, you come fast. और हमने उनको बताया कि हम बाइक पर आगे जा रहे हैं और हम जब आएंगे तो थोड़ा दूर रुकेंगे, आप जल्दी आ जाओ। But what happened when they were together and taking selfie and photograph and getting darker and darker. और क्योंकि वो एक साथ थे, फोटो ले रहे थे और अंधेरा हो रहा था, they forgot that they remember, they're thinking that we will come and pick them up, till then they will be there. और वे भूल गए और उनको लगा कि जब हम आकर उनको लेंगे तब तक वो वहीं रुक सकते हैं। So till that early time that so many people, crowd was there, so they were not frightened, they were okay with that. और शुरुआत में बहुत वहां भीड़ थी, इसलिए उनको डर नहीं था और वो बिल्कुल ठीक थे। As it got darkened and everybody, almost people are leaving one by one, and only very rarely few people there, and we sat in the near seashore. और धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी, बहुत सारे लोग चले गए, बहुत कम लोग थे और हम जैसे उस समुद्र के पास बैठे थे। Because of low tide, that sea water is so too inside and they were so deep, and we are in the seashore, very long distance. और क्योंकि लो टाइड था तो वो पानी इतना पीछे चले गया था, वो बहुत अंदर तक चले गए थे उस समुद्र के पास। But even though I was sitting so far, my eyes are on them only. पर मैं इतना दूर बैठकर भी मेरी आंखें उनके ओर ही थी। And it's getting dark and I could see them, they are enjoying themselves. और अंधेरा होते रहा है और मैं देख रहा था कि वो कैसे आनंद ले रहे थे। One person holds a light and another person takes photo, like that going on. और एक व्यक्ति लाइट को पकड़ता है और दूसरा फोटो खींचता है। Then thought came that became so late, let us call. और फिर मुझे ऐसा लगा कि बहुत देर हो गई है, मैं उनको बुला लेता हूँ। Then they realized, they got frightened seeing the dark and not people are nearby around. और फिर अचानक उनको डर लगा क्योंकि पूरा अंधेरा हो गया था और आसपास ज्यादा लोग नहीं थे। The water also coming up slowly and gradually. और धीरे धीरे पानी भी वापस आ रहा था। And they were so frightened. Then I was sitting, and as a father I was feeling little lazy. I should have gone there and helped them, encouraged them to come soon. और उनको डर लग रहा था और फिर मुझे बुरा लग रहा था कि मैं पिता होने के नाते थोड़ा आलसी था, मुझे जल्दी जाकर उनको बुलाना चाहिए था। I was thinking they can manage, they should learn to manage. और मुझे लगा कि ठीक है, उनको सीखने दो वैसा भी। But later realized there was so many dangers in that night, in the so far, and there was water is coming out, and there is possible water can take them away so suddenly. और फिर मैंने सोचा कि नहीं, वहां इतने खतरे थे, एक तो रात भी हो गई थी, पानी भी आ रहा था, पानी भी अचानक आ सकता था। And police also roaming around there. After particular time, they can people, they can tell them to go away, beat them, or take them the van. और पुलिस भी वहां घूम रही थी, वो उस समय उनको मार सकते, उनको वैन में डाल के ले जा सकते। And there is possibility that some men who are drunkard or roaming around, they could have taken advantage of them. और फिर जो लोग शराब पी के वहां होते हैं, ऐसे लोग शायद उनका फायदा उठा सकते हैं। But as a father, I failed to give the protection to my children. और एक पिता होने के नाते मैं असफल हुआ अपने बच्चों को सुरक्षा देने में। Because I was so lazy in my mindset. क्योंकि अपने सोच में मैं बहुत आलसी था। Then really God was convicting me that what a faithful father I am. Sorry uncle, can you repeat? God was convicting me what a faithful father I am been.
और परमेश्वर मुझे इस बात को बता रहा था कि मैं कितना एक विश्वास योग्य पिता रहा हूँ। And before going to that beach, something other thoughts were going in my mind. और उस बीच में जाने के पहले कुछ दूसरे विचार मेरे मन में चल रहे थे। And actually there was a appointment with the brother to spend time with the brother. और एक भाई के साथ मैंने पहले ही तय किया था कि थोड़ा समय मैं उनके साथ बिताऊंगा। I tried to call him couple of time and it was switched off. Then I thought it's an excuse that now I can change my plan. I changed my plan. और मैंने उनको कुछ कई बार फोन लगाया पर उनका फोन स्विच ऑफ था, तो मुझे लगा यही बहाना है, मैं अपने जो तय किया है उसको बदल सकता हूँ। And before leaving, I was telling my wife also, evening there is a meeting also, will come soon. और जाने से पहले भी मैं अपने पत्नी से कह रहा था कि शाम को एक मीटिंग है, इसलिए हम जल्द आएंगे। And my wife was giving very good, nice plan. And she was mentioning that case, then better we go nearby somewhere. We'll come back soon to attend the fellowship meeting. और फिर मेरे पत्नी ने भी अच्छा सुझाव दिया कि ऐसा है तो हम पास में ही जाते हैं, मतलब हम जल्दी आकर फेलोशिप की मीटिंग में जुड़ सकते हैं। But my mind was saying that we were too much religious and just attending too many meetings. It's okay. Today we go out as a family. और मुझे लग रहा था कि नहीं, ये बहुत हम लोग धार्मिक हो रहे हैं, बहुत सारे मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए अगर हम परिवार होकर ऐसे ही बाहर जाए तो वो भी ठीक है। And yesterday there was a opportunity and there was a choice I could make to. I would have we would have planned and attend a fellowship meeting. और इसलिए कल एक चुनाव था कि हमने अगर अच्छे से नियोजन किया होता तो हम वो फेलोशिप मीटिंग में जुड़ सकते थे। But I was listening to my mind was Bible says, do not lean on your own understanding, but trust in the Lord and acknowledge Him in all ways. पर मैं अपने ही सोच पर निर्भर था, और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि अपने ही बुद्धि का सहारा मत ले। Many times we are so religious and we are so many things in our personal life, physical life. We don't compromise in that, like eating and sleeping and even brushing or taking bath, many other things, dressing. और हमारे जीवन के कुछ विषयों में हम इतने धार्मिक होते हैं और इतना अच्छे से उसका पालन करते हैं, जैसे खाना, सोना या ब्रश भी करना हो या नहाना हो। But when we come to the fellowship meeting, when we come to the reading word of God or prayer, and our mind can say, you are so religious, you are so Pharisee, why you are doing this? पर जब संगति की बात आती है या बाइबल पढ़ने के विषय में बात आती है, तो हमारा मन कह सकता है कि तुम कितने धार्मिक हो, कितने फरीसी के समान हो, क्यों ये सब कर रहे हो। So that's where the challenge says, and as brother even Kiran was saying, do not forsake the fellowship meeting together. Can you repeat, uncle? In the beginning, brother Kiran also sharing, do not forsake the fellowship gathering together in the church. और शुरुआत में भाई किरण भी बांट रहे थे कि कलीसिया में एक इकट्ठा आना, उस बात को नजरअंदाज मत करो। And there was a right thing to do for the family. I should have taken but I went according to what my mind says. और एक सही चीज था जो मैं कर सकता था, पर मैं अपना जो मन था उसी के हिसाब से मैंने किया। Like we all know about Jonah, what God said something and he listened to his own will, doing his own will, and he went away from the presence of the Lord. और जैसे हम योना के विषय में भी पढ़ते हैं कि प्रभु ने उसको कुछ करने के लिए कहा, पर वो अपने ही इच्छा से उसने कुछ किया और परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर चले गए। Going away from presence of the Lord, he was in danger. He kept many others along with his boat. Dangerous situation. और परमेश्वर के उपस्थिति से दूर जाने के वजह से वो खुद भी खतरे में आया, और उसके साथ जो बाकी लोग थे उस जहाज में, उनको भी खतरे का सामना करना पड़ा। But God was challenging me, correcting me. So yesterday you went to according to your own understanding. You did not acknowledge God. You did not obey God's voice in your heart. और प्रभु मुझे इस बात का एहसास दिला रहा था कि कल तुमने अपने ही बुद्धि से काम किया और परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। Even though my wife was good enough to correct me, to help me, yet I was like the Balaam who beated that donkey and going according to his will. और यद्यपि मेरे पत्नी ने बहुत ही भलाई से मेरे को अच्छा सुझाव भी दिया, उसके बावजूद मैं उस बिलाम की तरह था जो उस घोड़ी को मार रहा था। So that's why children were yesterday at the dangerous situation. और इसलिए बच्चे कल वो उस खतरे के स्थान में थे।
But as a father, I was not faithful. I was not protection. I was not taking care of them, and neither I could be example and bringing them to meeting also. और पर एक पिता होने के नाते मैं उनको सुरक्षा नहीं दे सका और उनका ध्यान नहीं दे सका और एक उदाहरण भी नहीं बन पाया कि उनको मीटिंग में ले आऊं. But I could see God is so faithful, and He kept them safe, and He brought us safe, and because of His mercies and grace, we are living today. और मैं देख सका कि परमेश्वर उसके इतना विश्वास योग्य है और उसने इतने अच्छे से हमें चलाया और उसकी दया में वो ले आया. This does not mean God is pleased with me or God is pleased with our family. इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर मुझसे या हमारे परिवार से प्रसन्न है. Only He is so merciful, and I cannot take advantage of. इतना है कि वो बहुत दया से भरपूर है और मैं उस बात का फायदा नहीं ले सकता. So that's what even looking into Jesus, and the Bible says in Luke 4:16, as it was his custom, he went to the synagogue. और इसलिए यीशु मसीह की ओर देखकर और लूका 4:16 में भी लिखा है जैसे यीशु मसीह की आदत थी वो उस आराधनालय में गया. And it was his custom, he read the scripture in the temple. और जैसे उसकी रीति थी उसने आकर उस पवित्र शास्त्रों को पढ़ा. Bible says as it was his custom, he used to go to Mount of Olives to pray regularly. और बाइबल में ये भी लिखा है कि उसकी रीति के अनुसार वो उस जैतून के पर्वत पर जाता था और प्रार्थना करता था. And there is one person in this earth who never needed any meeting, any temple or any synagogue or any prayer, is only Jesus. और इस पृथ्वी पर एक ही मनुष्य हुआ है जिसको कभी किसी प्रार्थना में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ी और वो था यीशु मसीह. But yet he was so custom, he had the custom, a regular discipline in his life where he always used to go to temple, synagogue. इसके बावजूद उसकी ये रीति थी, उसकी आदत थी, उसका ये अनुशासन था कि हर समय वो सभा में और उस आराधनालय में जाया करता था. So we see that Father in heaven testifying that I am well pleased when the time of getting baptism. और इसलिए यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय हम देखते हैं कि परमेश्वर ये गवाही देता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अति प्रसन्न हूँ. Even regarding baptism, that also only one person who don't need baptism at all, Jesus Christ himself, but he obeyed Father, he pleased Father. और बपतिस्मा के विषय में भी यीशु मसीह इकलौता व्यक्ति था जिसको बपतिस्मा की कोई जरूरत भी नहीं थी, उसके बावजूद उसने आज्ञा मानी और परमेश्वर को, अपने पिता को प्रसन्न किया. Looking into Jesus, his faith and his faithfulness, God was so pleased. यीशु मसीह को देखकर, उसके विश्वास और उसके विश्वास योग्यता को देखकर परमेश्वर प्रसन्न हुआ. I was yesterday challenged and corrected and convicted, and that God showed me that how my weak faith and how I'm faithless in my responsibility God has attested. और कल मैंने इस चुनौती पाई और परमेश्वर से सुधारना पाई कि कैसे मैं अपने विश्वास योग्यता में कमजोर हूँ. I want to thank God even to one of the elder brother who called me and who had a concern for me, asked me what happened yesterday, why you are not in fellowship. और मैं एक अगुए भाई के लिए भी बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने कल मुझे फोन किया, पूछा कि क्यों तुम संगति में नहीं थे. I am so grateful and thankful for the such brothers and the fellowship, the prayers, and God's mercies keeping us going. And I really want to repent, and I want to be have faith and faithfulness to God. और मैं इसलिए बहुत आभारी हूँ परमेश्वर के लिए, ऐसे भाइयों के लिए, इस परिवार के लिए जो इतना विश्वास योग्य है और परमेश्वर के प्रति भी मैं विश्वास योग्य रहना चाहता हूँ. I want to live such a life which is only pleasing God. और मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ जो सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करता हूँ. Amen. I really praise God and thank the Lord for what we have heard. सच में परमेश्वर की मैं स्तुति धन्यवाद करता हूँ जो बातें मैंने सुनी उसके लिए. Something which I'm working out in my days, working out these days. और ऐसी कोई बात जो इन दिनों के अंदर मैं उस पर काम कर रहा हूँ. It is not easy, but I'm asking God grace for it. वे आसान बात नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर से उस बात को करने के लिए अनुग्रह को मांग रहा हूँ. Because every time we are accountable to God. क्योंकि हर एक बार हम परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार हैं. One verse which I read in the past days and I'm working on that. और पिछले दिनों में जो वचन मैंने सुना और जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ,
It is Psalms 19 verse 12. और भजन संहिता 19 उसका 12 वचन। Teach us to make the most of our time so that we may grow in wisdom. Is it 9090? 90. Psalms 19 verse 12. 90. 90, ओके सॉरी, माफ़ करना। भजन संहिता उसका 90 अध्याय उसका 12 वचन। 12. 90 Yes. 12. हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। Every day is important and I need to understand the value what I spend in front of my Lord. और प्रत्येक दिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुझे इस बात का मूल्य समझना है कि उस समय का मूल्य समझ के परमेश्वर के सामने उस समय को बिताना है। This is where I am encouraged about and I am seeking more grace in this area. So और एक क्षेत्र के अंदर मैं प्रोत्साहित हुआ और एक क्षेत्र के अंदर और परमेश्वर का अनुग्रह मैं खोज रहा हूँ दिनों के अंदर। I praise and thank the Lord in Jesus' name. Amen. और मैं प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा आज के वचन के लिए। आज प्रभु ने मुझे फिर से याद दिलाया आज के वचन के द्वारा कि परमेश्वर जो गुप्त में है वो हमें देखता है। तो ये वचन सुनने के दौरान मुझे भजन संगीता 139 वो याद आ रहा था। उसमें ऐसा लिखा है कि हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छुप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन की तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। तो ये वचनों से मुझे काफी प्रोत्साहन मिला और हम आज के वचन के द्वारा भी देखते हैं कि परमेश्वर हमारा उठना बैठना और हमारी छानबीन हर समय करता रहता है। तो वो प्रेजेंस, उसके उपस्थिति को हम हर जगह लेकर जाएंगे तो हम काफी चीजों से, हमारा बोलना, हमारा रहने का रहन सहन का तरीका, हमारे बोलने का बातचीत का तरीका, हम किस तरह से बोलते हैं बातचीत करते हैं, उस विषय में प्रभु ने फिर एक बार मुझे चेतावनी दी और हर समय उसकी उपस्थिति को लेकर चलने के लिए मुझे बताया कि वो हर समय मैं उसकी उपस्थिति को लेकर, उसके भय को लेकर चलना चाहिए और हमेशा जीवन में, और हमेशा ये महसूस करना चाहिए कि हाँ, वो मुझे देख रहा है या वो मेरे आस-पास है। तो जब मैं कतर में अकेला था, तभी ये वचन मैंने भाई ज़ैक के द्वारा भी यूसुफ के जीवन के बारे में, विषय में जब बता रहे थे, वो सुना था। तो वहाँ पर अकेले रहते हुए तब मैंने महसूस किया कि नहीं, जब भी मैं अकेला भी हूँ, यहाँ मुझे कोई भी देखने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है। तो ये फिर एक बार मुझे याद दिलाया, इससे मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगा और भाई डैनी का भी धन्यवाद करूँगा इन वचनों के लिए, जिससे मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला। धन्यवाद।